Hello everyone, welcome back to my channel Mr. Aghavudda, and in this video we will do the chapter number 3 from the economics book SST class 10th and जो ये है ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ये वाला चैप्टर आपका है मनी एंड क्रेडिट। तो इस चैप्टर में हम मनी और मनी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे एंड क्रेडिट्स क्या होते हैं, बैंक्स के बारे में थोड़ा बहुत सब कुछ पढ़ेंगे। तो let us start this chapter. So, the use of money spans a very large part of our everyday life. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in a single day. Can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money, and in some of these transactions, services are being exchanged with money. For example, there might not be an actual transfer money taking place now, but a promise to pay a money later. Okay, तो इस बारे में क्या बताया गया है कि जो मनी है उसका यूज़ होता है हर ट्रांजेक्शन को पूरा करने में। जैसे कि आप कोई भी चीज़ें लेते हो तो उस ट्रांजेक्शन उस गुड के लिए आपको मनी का ट्रांसफ़र करना पड़ता है। उस जिससे आपने गुड लिया उसको मनी देना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप किसी चीज़ को बेच रहे हो तो आप मनी लेके ही उस गुड को बेचोगे, सर्विसेज भी। पर कई जगह ऐसा होता है, नहीं है, कोई बार आप ले लेते हैं पर आप प्रॉमिस कर देते हैं, येस आई विल गिव यू मनी लेटर, प्रॉमिस टू गिव द मनी लेटर। If you ever wonder why transactions are mere money, the reason is simple. A person owning money can easily exchange it for any commodity or services that he or she might want. Thus, everyone prefers to receive the payment in money and then exchange the money for things that they want. Take the case of a shoe manufacturer. He wants to sell the goods in the market and buy wheat. The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat. Imagine how more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. He would have to look for a wheat growing farmer, and who not only want to sell his wheat but also wants to buy the shoes in exchange. That is, both the parties have to agree to sell and buy each other's commodities. This is known as double considerant of wants. तो यहाँ पर हमें डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वॉन्ट्स की परिभाषा मिल गई है कि एक आदमी है, जैसे कि एक शू मैन्युफैक्चर का इधर जो है केस लिया गया है। एक शू मैन्युफैक्चर है, उसको वीट खरीदने हैं, तो उसको या तो सिंपली मनी का यूज़ करके अपने शूज़ बेचेगा, फिर उस मनी का यूज़ करके वो वीट खरीदेगा। पर अगर मनी ही नहीं हो, नो मनी, तो क्या उसको ऐसे एक फार्मर को देखना पड़ेगा जो वीट भी बेचना चाहता है और शूज़ भी खरीदना चाहता है। ये उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा और दोनों को ही सेटिस्फाई करनी पड़ेगी एक दूसरे की नीड। और उसको एक ऐसा पर्सन चाहिए होगा, जैसे क्या दे रखा है, that both the buyer and sellers have to agree to buy and sell each other's commodity. तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट है। तो पर्सन जिसके पास मनी है, अब मनी आ गया, पहले नहीं था मनी तो वो ऐसे ही करते थे, ठीक है। मनी से आप इजीली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हैं। What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, the double considerance of want is an essential feature. Barter system में क्या होता था, जब मनी नहीं था तो जो है जैसे शू मैन्युफैक्चर है और ये है, तो उन एक दूसरे को करना पड़ता था exchange without the use of money, directly exchange होते थे. In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double considerant of wants. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time he will sell his wheat. ठीक है, तो जिस इकोनॉमी में मनी है वहाँ पर ये जो सारी चोचले वगैरह है ये नहीं होते, वहाँ पर आसानी से सब कुछ हो जाता है। तो अब आगे चल जाता है। All he has to do is to find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat for another commodity in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange process, this is known as medium of exchange. हमारे यहाँ पे medium of exchange हमारा मनी है, हमारे
इंडियन, हम जैसे इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ पर वो इंडियन रुपी है, ठीक है। यहाँ पर 20 का नोट दिखाया हुआ है, 5 का नोट दिखाया हुआ है, बहुत सारे नोट्स दिखाए हुए हैं। तो मतलब अब उसको ऐसा नहीं है कि उसको फार्मर ढूंढना पड़ेगा फिर ऐसे, पर अब बस वो सिंपली एक अपने आप के लिए एक शूज़ के बाहर ढूंढना पड़ेगा जो उसके शूज़ खरीदे और उसको बदले में पैसे दे दे और वो पैसे लेकर चला जाए और अपने वीट खरीद ले। Now, modern forms of money. Money के modern forms क्या है? We have seen that the money is something that is a medium of exchange and transactions. Before the introduction of coins, a variety of objects was used as money. For example, since the early ages, Indian used grains and cattle as money. Thereafter came the use of the metallic coins like gold, silver, copper coins, and a phase was continued well into the last century. पहले जब एंशिएंट टाइम था तो लोग अपने जो है ग्रेन्स को, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, अपने ग्रेन्स को, अपने कैटल्स को यूज़ करते थे एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज मनी, राइट। नाउ करेंसी, व्हाट इज करेंसी? इसमें हम ये पढ़ने वाले करेंसी वगैरह क्या होती हैं तो वो पढ़ लेते हैं हम। मॉडर्न फॉर्म इंक्लूड करेंसी लाइक पेपर नोट्स एंड कोइंस। अब हमारे पास क्या है, पेपर नोट्स हैं, पेपर पे जो हमारे ये नोट्स हैं, एंड कॉइन्स है, ये मॉडर्न कॉइन्स दिए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, अपनी बुक में देख लेना। पर ऐसे पहले थोड़ी होते थे। Unlike the things that were used as money earlier in the modern currency is not made of precious metal, not made of precious metal, gold, silver, copper. Unlike grain and cattle, there are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. एक सेकंड दोबारा पढ़ लेते हैं क्या मतलब कहना चाहता है। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made up of this and this. पहले जो थे वो अभी पहले के ज़माने में देखो, अब कोइंस गोल्ड सिल्वर वगैरह कॉपर के बनते थे, पर अभी थोड़ी बनते हैं वो मेटल को, वो तो सिंपल बन जाते हैं, पेपर नोट्स भी बन जाते हैं। पर पहले देखिए जैसे कि इधर दिया हुआ है अर्ली पंच मार्केट कॉइन्स। एक सेकंड अपनी बुक में देख लेता हूँ क्योंकि इधर क्लियर नहीं आया हुआ है। अर्ली पंच मार्क कॉइन्स में भी ये 2500 साल पुराने हैं। फिर उसके नीचे दिया हुआ है गुप्ता का कॉइन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कि गुप्ता पीरियड के कॉइन्स हैं, कि तुगलक पीरियड से कॉइन है, चकोर, ये अकबर के पीरियड के कॉइन्स हैं, एंड ये हमारा मॉडर्न कॉइन है, ये 1 रुपये का कॉइन है, इस पर 2001 लिखा हुआ है, ये 2001 में बना था। Then why it is accepted as medium of exchange? मनी को medium of exchange क्यों एक्सेप्ट करते हैं, जबकि पहले तो ये वगैरह इसको medium of exchange के रूप में नहीं एक्सेप्ट किया जाता था। It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. जो कि करेंसी है वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारे इंडियन की बात करेंगे हम, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑथोराइज करती है, ठीक है। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि हमारा जो है RBI जो है ये this issues currency notes on the behalf of the central government. As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. Moreover, the law legalizes the use of rupee as a means of payment that cannot be refused in settling transactions in India, and no individual in India can legally refuse a payment made in rupees. Hence, the rupee is widely accepted as a means of exchange. तो इंडिया में RBI नोट्स छापता है on the behalf of the central government, और इन लॉ के तहत RBI के सिवा और कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करेंसी नहीं बना सकती है। और मोरोवर जो है लॉ ने जो यूज़ ऑफ रुपी है उसको ही मीडियम ऑफ पेमेंट बनाया है, और ये ट्रांजैक्शंस सेट करने के लिए इन इंडिया यूज़ होंगे, और कोई भी आदमी रुपीज़ में जो पेमेंट की जाती है उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है इन इंडिया लीगली, ठीक है। इसलिए इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नॉट डिपॉजिट्स विद बैंक, ये वाला हम पढ़ेंगे अब, डिपॉजिट्स एंड बैंक। The other form is in which people hold money is deposits with the bank. At a point of time, people need only some currency of their day-to-day needs. For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month.
What do with the extra cash? They deposit at the banks by opening the bank account in their name. Banks accept the deposits, which will also pay an amount on interest on the deposits. In this way, people's money is safe with the banks and it earns amount as interest. People also have the provision to withdraw the money as and when they require. Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. क्या बताया गया है कि जैसे कि किसी आदमी को अपने महीने की आखिर में तनख्वाह मिलती है, लाइक मान लो 50,000 मिलती है, 50K मिलती है, तो उसका अगर 30,000 में, मान लो 30,000 में पूरे महीने का खर्चा चल रहा है, तो 20,000 जो है वो एक्स्ट्रा कैश है, उसको घर पे रखेगा तो चोरी चकारी होने का थोड़ा सा डर रहेगा। पर उस चोरी चकारी से बचने के लिए वो क्या करते हैं, व्हाट दे यूज टू डू, दे डिपॉजिट्स इन द बैंक। अब बैंक में क्यों डिपॉजिट करा भाई, इससे बढ़िया तो घर में रखा था, घर बैंक में रख के क्या अलग मिल जाएगा। तो सबसे पहले बैंक एक सेफर प्लेस है एज कम्पेयर टू दी होम। मोर ओवर दे प्रोवाइड इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है हमारे डिपॉजिट्स पे, ठीक है। इट गिव इंटरेस्ट, लाइक जो भी इंटरेस्ट मार्केट में इंटरेस्ट रेट है वो उस पर देता है, एंड सेफर प्लेस है। तो ये दो बिल्कुल जो है मेन कारण है बैंक में मनी डिपॉजिट करने की। और जब भी कोई चाहता है, जिस अपने नाम से जिसने बैंक खुलवा रखा है, वो अपने मनी वापस विथड्रॉ कर सकता है और अपने डिमांड पे, इसलिए इसे डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। एंड नाउ demand deposits offer another interesting facility. It is a facility which lends it an essential characteristic of money, that of a medium of exchange. You would have heard of the payment used by making checks instead of cash. For payments to checks, the payer who has an account with the bank makes an urgent check for the specific amount. A check is a paper instructing the bank to pay the specific amount from the person's account from another person's account. The person whose name the check has been issued. तो डिमांड ड्राफ्ट की एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है, क्या आप चेक से पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि इधर दिया गया है, चेक से पेमेंट कर सकते हो। चेक क्या होता है, इट इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू ट्रांसफर द मनी, जो भी मनी का अमाउंट दिया हुआ है, स्पेसिफिक अमाउंट दिया गया है, उसे एक बैंक से दूसरे मतलब एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में भेजा जाता है, जो कि उस पर इंस्ट्रक्ट होता है कि इतना स्पेसिफिक अमाउंट है, 50,000 फलाने आदमी को इस बैंक अकाउंट वाले को देने हैं, तो वो दे देता है। नाउ हम देख लेते हैं चेक पेमेंट्स कैसे की जाती हैं। नाउ अ शू मेकर है, मिस्टर सलीम, मोहम्मद सलीम, हैज़ टू मेक अ पेमेंट टू द लेदर सप्लायर एंड राइट अ चेक अ स्पेसिफिक अमाउंट. This means that the shoe manufacturer instructs his bank to pay this amount to the leather supplier. The leather supplier takes this check and deposits it in his own account in the bank. The money is transferred from one bank account to the another bank account in a couple of days. The transaction is completed without any payment of cash. भाई एक मोस्टर मैन्युफैक्चर है मोहम्मद सलीम, उसको अपने जो लेदर जिससे वो सप्लाई करवाता है उसको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट देनी है, तो एक चेक बनाता है जो कि वो उसको दे देता है, किसको दे देता है, जो उसका लेदर सप्लायर है, वो अपने बैंक में जाके उसको जो है सबमिट करवा देता है। फिर थोड़े दिन में उसको वो अमाउंट मिल जाएगी इन अ कपल ऑफ डेज एंड विदाउट द पेमेंट ऑफ कैश। ये पूरा हो गया। देखो क्या है, यहाँ पर लिखा गया है पे प्रेम कुमार, जो उसका लेदर सप्लायर होगा। यहाँ पे डेट दी हुई है, यहाँ पे जितना भी उसको देना इन नंबर्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर इन दी नंबर्स इन दी अल्फाबेट्स लिखा हुआ है, इन दी वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर उसका वो दिया हुआ है अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, एंड यहाँ पर दिया हुआ है कौन से बैंक में है, ये पूरा उसका एड्रेस दिया हुआ है, ये चेक नंबर है, ये कॉलिंग बाय द बैंक से, ये वो बैंक का काम होता है, यहाँ पर उसने साइन किया हुआ, ठीक है। तो ऐसे होता है check. Thus we see that the demand deposits share the essential features of money. The facility of check against the demand deposits makes it possible to directly settle payments without the use of cash. Since the demand deposits are accepted widely as a means of payment, along with the currency, they constitute money in the modern economy. You must remember that the role that the banks play here. But for the banks, there would be no demand deposits and no payments by checks against the deposit. The modern forms of money, our currency and deposits, are closely linked in the working in banking.
क्या है कि बहुत सारे डिमांड डिपॉजिट वो बहुत काम करते हैं यहाँ पे बिना मनी के। बहुत सारे काम हो गए हैं करेंसी से, बट फॉर द बैंक से वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो पेमेंट्स बाय द चेक्स अगेंस्ट दीस डिपॉजिट्स। इधर जो मेन काम है वो ये है दैट मॉडर्न बैंक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपको याद रखना है, अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब मेरे हिसाब से। Now in rural areas the main demand for credit, एक सेकेंड ओके बीच में एक जो है वो पेज रह गया है, उसको मैं जो है रीड आउट कर देता हूँ। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक दिया हुआ है। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ अ बैंक फर्दर। व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स व्हिच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक? देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर. Banks keep us only a small proportion of their deposits as cash for themselves. For example, banks in these days hold about 15% of their deposits as cash, and this is kept as a provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on a given day. Since on any particular day, only some of its many depositors come to withdraw money, bank is able to manage with the cash. देखो क्या है, जो अब बैंक के पास पैसा आता है उससे वो करता क्या है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। बैंक के पास पैसा था उससे जो डिपॉजिट्स हो जाता है पैसा, उससे वो करता क्या है, जो उसके पास डिपॉजिट्स होते हैं उनसे वो क्या करता है, उनका जो 15% है, जैसे 100 रुपीज़ दिए किसी ने तो उसका 15 रुपये वो अपने पास रख लेगा, और जो 75 पैसे बच गए 75% बच गया उसका देखता है बैंक क्या करता है। जो 15% है वो अपने पास इसलिए रखता है क्योंकि कभी भी जो जिसने डिपॉजिट करा है वो उसको विड्रॉ करने के लिए आ सकता है अपनी यूज़ के लिए ऑन एन गिवन डे, पर उसे पता है कि सारे एक ही दिन तो नहीं आएंगे। नो वन विल कम on any particular day. some कुछ भी आएंगे, some of them will come. तो वो जो बाकी जो 70% है, जो the banks use a major proportion to deposit extend loans. There is a huge demand of loans from various economic activities. We shall read more about this in the following sections. Banks make use of the deposits to meet the loan requirements of the people. In this way, bank mediate between those who have surplus money, the depositors, and those who are in need of these funds, the borrowers. Bank charge a higher rate of interest on loans than that what they offer in deposits. The difference between what is charged from the borrowers and what is paid to the depositor is a main source of the income. क्या है कि ये जो 75% है वो लोन्स देने में काम आता है, वो लोन्स दे देता है। बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो लोन देने में काम आती हैं, मतलब जैसे किसी को कुछ शॉप खोलनी है नहीं वगैरह, कुछ बिजनेस स्टार्टअप करना है तो उसके लिए वो लोन देता है। जो ये बाकी 75% है उस पर लोन देता है, 15% अपने पास रखता है क्योंकि और इस तरह से वो एक मीडिएटर का काम करता है जिसके पास मनी है और जो लोन लेना चाहता है, तो वो जो इसका वो लोन दे रहा है ना पैसा, वो उसको नहीं दे रहा सारा, क्या कर रहा है, जो जिसने डिपॉजिट किया है उसको कम इंटरेस्ट दे रहा है, और जिसने लोन लिया है उससे वो हाई ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, उससे वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तो जो पैसा बच गया, जैसे उसने मान लो उसने जो है उसने 10 रुपये दिए डिपॉजिटर को पर मंथ, और वो जिससे उसको लोन दिया उससे 20 रुपये लेता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो बीच में तो 10 रुपये बच गई वही उसकी इनकम होती है बैंक की। दिस इज द इनकम ऑफ द बैंक, इससे मेन सोर्स ऑफ बैंक है ऑफ इनकम फॉर द बैंक, ठीक है। फिर है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस. Now, a large number of transactions are day-to-day activities involve credit in some form or another. Credit एक लोन होता है. Credit refers to an agreement. I am writing here an agreement in which the lender supplies the borrower
with money, goods or services in return for the promise of future payment. जिसके पास पैसा होता है वो क्रेडिट यानी को लोन देता है, वो एग्रीमेंट करता है कि बाद में वो मैं ऐसे दे रहा हूँ तो वो बाद में मेरे को पैसे वापस लौटा देगा। अब डिफरेंट सिचुएशंस क्या होती हैं यहाँ पर? सिचुएशंस हो क्या जाती हैं कि कभी तो त्योहार आ जाता है। यहाँ पे 2 केसेस हैं, फेस्टिवल सीजन और एक स्वप्नाज प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। इन अ फेस्टिवल सीजन ऑफ 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large traders in towns for 3,000 pair of shoes to be delivered in a month time. To complete the production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. He has to purchase the raw materials to meet the future expenditures. Salim obtains loans from 2 sources. First, he asks the leather supplier to supply leather now and promises to pay him later. Second, he obtains a loan in cash from the last trader and advance from the payment of 1,000 shoes with the promise to deliver whole shoe at the end of the month. At the end of the time, Salim is able to deliver shoes and make a good profit and repay the money that he had borrowed. क्या है यहाँ पे? सिंपल से दिया हुआ है कि सलीम ने क्या करा, एक उसको 3,000 पेयर ऑफ शूज़ बना के भेज रहे थे, तो उसको थोड़े और वर्कर्स जो है लेबरर्स हायर करने पड़े इस चीज़ के लिए, स्टिचिंग एंड पेस्टिंग के वर्क के लिए। पर अब वो लोन उनको तनख्वाह भी देनी पड़ी, कहाँ से लेके आएगा? एक तो उसने लेदर वाले से जो है क्या कहा, तो सप्लाई लेदर, उसको लेदर सप्लाई करने के लिए कहा कि उनको 3,000 रुपये का ऐसा ऑर्डर मिला है, अब उनको लेदर सप्लाई कर दीजिए, आई विल गिव यू बैक द मनी, तो बाद में दे देगा। और एक उसने कहा जिससे उसको ऑर्डर मिला था, उससे कहा कि आप उनको 1,000 जो है उसका 1,000 शूज़ है उनका एडवांस में पेमेंट कर दीजिए, आई विल गिव यू बाद में, मैं आपको बाद में दे दूंगा पैसे, मतलब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल गिव यू द शूज़ ऑन टाइम। ठीक है। In his case, Salim obtains a credit to meet the working capital needs of production. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time, and thereby increases his earning. Credit is therefore plays a virtual and positive role in this situation. इस रोल में इसने पॉजिटिव सिचुएशंस आई थी एंड virtual रोल प्ले किया था। बट दूसरा हम देख लेते हैं, एक स्वप्नाज प्रॉब्लम है। तो सपना की क्या प्रॉब्लम है हम वो भी देख लेते हैं। भाई सपना दीदी की क्या प्रॉब्लम है? भाई सपना दीदी को भी तो देखना पड़ेगा। सपना इज अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंड ऑन 3 acres ऑफ लैंड। इस सपना जो है एक स्मॉल जो है फार्मर और वो ग्राउंडनट्स उगाते हैं अपने 3 एकड़ भूमि पे। She takes loan from the money lender to meet the expenses of cultivation, hoping that their harvest would help to repay the loan. Midway through the season, the crop is hit by pests and crop froze. उसने मनी लैंडर से पैसे लिए थे कल्टीवेशन करने के लिए, बट बीच में ही जो है सीजन में जैसे टिड्डी आ जाते हैं उन्होंने ख़राब कर दिया और उसकी सारी क्रॉप्स ख़राब हो गई। दो सपना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स, इसलिए वो पेस्टिसाइड से उस पर स्प्रे करती है। इट मेक्स अ डिफरेंस। She is unable to repay the money lender. The debt grows over the years into a large amount. Next year, Swapna takes a fresh loan from a cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She's caught in debt, and she has to sell a part of her land to pay off the debt. क्या सपना उसने फिर वो उसकी खराब हो गई थी तो उसने क्या किया, उसने पैसे लिए दोबारा से उसने कर्जदार से पैसे लिए मनी लैंडर से। अब की बार उसकी सही क्रॉप होगी, पर ये उतने सही इतना नहीं, इतनी क्रॉप में इतना वो नहीं थे पैसे कमाए गए कि वो अपने जो है पुराना लोन चुका सके। इसलिए वो डेप्ट ट्रैप में कॉट हो गई थी, डेप्ट ट्रैप में बस गई थी, वो कर्ज में डूब गई थी और इसलिए उसको अपना जो है लैंड सेल करना पड़ा। किसके लिए? अपने वापस मतलब अपनी कर्ज से उठने के लिए। तो इसमें इस वाले सिचुएशन में उसमें थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन आई इसके लिए। अब क्या है,
इन रूरल एरियाज मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। रूरल एरियाज में जो क्रेडिट के लिए डिमांड है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होती है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट इन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. Farmers usually take crop loans at the beginning of the season and repay the loan after harvest. Repayment of the loan is crucially dependent on the income from farming. इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है? गांव वाले क्षेत्र में क्यों लिया जाता है लोन? वहाँ पे लोन लिया जाता है भाई फार्मिंग क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। क्यों क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी पैसा नहीं है क्या आपके पास? इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारा खर्चा जाता है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ों में। और ये 3 से 4 महीने का टाइम ही होता है जब वो अपना इनपुट्स वगैरह ले लेते हैं एंड सेल क्रॉप्स। मतलब ठीक है, समझ में आना, ये सीजन एक थोड़ा सा टाइम का होता है। एंड फार्मर्स जो है ना, जो सीज़न होता है उससे पहले से ही थोड़ा सा लोन ले लेते हैं एंड जब पूरा हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद लोन चुका देते हैं। लोन चुकाने के जो रिपेमेंट है उनका जो इनकम होता है फार्मिंग से उस पर ही डिपेंडेंट रहता है। अब सपना का केस क्या है? इन सपना's केस the failure of crop made the loan repayment impossible, so she had to sell the part of the land to repay the loan. Credit, instead of helping Sapna improve her earnings, left her worse off. This is an example of what is commonly called debt trap. Credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. अब क्या सपना के केस में ये सब कुछ उल्टा ही पड़ गया क्रेडिट का, तो उसकी थोड़ा सा क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया तो उससे सारा वो डेब्ट ट्रैप में चली गई। ठीक है, इम्प्रूव करने की जगह उसको वर्स कर दिया और क्रेडिट इसमें थोड़े पेनफुल हो जाते हैं रिकवरी करना। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स इंक्रीजिंग अर्निंग्स एंड देयरफॉर पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर, एंड अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप। To repay her loan, she has to sell a portion of land, and she clearly worse off than before. Whether would be useful or not, therefore, depends on the risk which in the situation and whether there is some support in case of loans. यहाँ पर बहुत सा उल्टा पड़ गया। ठीक है, यही दिया हुआ जो मैंने बताया अभी, वही दिया हुआ इसमें ना। टर्म्स ऑफ क्रेडिट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम हाउस लोन वगैरह देखेंगे एंड वैरायटी ऑफ क्रेडिट्स वगैरह। ये वाला पेज कलर भी नहीं आया हुआ था वैसे इसमें। एंड फिर लोन्स फ्रॉम कॉपरेटिव्स देखेंगे, देन फॉर्मल सेक्टर इन क्रेडिट इन इंडिया, फिर इनफॉर्मल क्रेडिट वगैरह वगैरह, इनफॉर्मल देखेंगे एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देखेंगे। देन इन द लास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लास्ट टॉपिक है। फिर ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एंड समिंग अप देखेंगे। सो थोड़ा सा आधे चैप्टर रह गए, एक तरीके से आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, उसमें फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, अच्छी वीडियोस आते रहते हैं शॉर्ट में। आपका भाई सबको पता है कि स्टूडेंट्स लाइफ में क्या क्या होता है। मैं भी 10th क्लास में हूँ, आप भी 10th क्लास में, दोनों मिलकर पढ़ेंगे, फोड़ देंगे।